Hello friends, welcome to our channel Center for Sociology and our sociology classes where we have been discussing some important concepts related to sociology optional from your UPSC mains point of view. And today dear friend, in same series of lecture, we are here to discuss one very important concept of a prominent sociologist, Pitirim Sorokin, and his idea on social change. So dear friends, if you go through previous year question papers, you will find that repeatedly UPSC has asked Sorokin's theory on social change. His perspective, his views on social change is regarded as a very prominent viewpoint, dear friend. So in this class, we will try to see that how Pitirim Sorokin, he portrays social change in an important manner and why it happens that very often we are not able to develop a good understanding on Sorokin's theory on social change. So आज की इस क्लास में, आज के इस लेक्चर में हम आपके साथ जानने की कोशिश करेंगे कि सोरोकिन की जो थ्योरी है सोशल चेंज के बारे में ये क्या है एंड हाउ ही हैज मॉडिफाइड द कन्वेंशनल साइक्लिकल थ्योरी ऑन सोशल चेंज. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस क्लास डियर फ्रेंड, there is some information about me. So I have been associated with UPSC civil services aspirant since last more than 12 years, dear friend. And your any query regarding sociology, social issue, polity and governance, you should feel free to ask me through these channels. You can connect with me, dear friend. और आपके जो भी queries हैं, आपके जो भी doubts हैं, आप मेरे साथ discuss कर सकते हैं using these channels, dear friend. Now let's move into our syllabus, dear friend. हमने आपके साथ अभी भी बहुत कुछ डिस्कस किया YouTube के थ्रू और कोशिश मैं कर रहा हूं कि देखिए उन कॉन्सेप्ट्स को, उन एस्पेक्ट्स को जिनको लेकर कई बार हम एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं कर पाते, उन्हें मैं YouTube के थ्रू आपके साथ कवर करूं. और इवन दो मेनी ऑफ यू माइट बी प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, सो ट्राई टू डेवलप a good understanding over these concepts, dear friend. Unit number 10, paper 1 में अगर आप unit number 10 की बात करें, so there is a topic that is sociological theories of social change. और देखिए ये जो sociological theories of social change है, they are nothing, dear friend. These theories are certain generalizations that try to explain the causes of social change, how change happens, what causes change, consequences of social change, factors leading to social change, and within those theories of social change, there are different set of theories. Evolutionary theories are there, cyclical theories are there, conflict theories are there. One such theory of Pitirim Sorokin that we are going to discuss today. और हमने आपके साथ लास्ट क्लास में साइक्लिकल थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज डिस्कस किया था. कैसे Pitirim Sorokin की ये जो थ्योरी है, that is just a modification of what? Cyclical theories of social change, जहां पर कुछ peculiar terms he is going to use like sensate, ideational, idealistic. और देखिए जब आप बुक्स के थ्रू या किसी मटेरियल के थ्रू इस थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं, सो कई बार आप इसको लेकर एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं बना पाते दोस्तों कि what exactly Pitirim Sorokin is talking about when he is talking about sensate, ideational, वेल्टनचुंग, प्रिंसिपल ऑफ इमिनेंट चेंज, क्रिएटिव पोटेंशियल, ऐसे बहुत सारे टर्म्स इस थ्योरी में यूज किए गए हैं. और हम कई बार इस थ्योरी को याद तो कर लेते हैं, बट सपोज यूपीएससी आस्क सम क्वेश्चन रिलेटेड टू एप्लीकेशन ऑफ दिस थ्योरी, सो आप इस क्लास के बाद जरूर ये समझ पाएंगे कि इस थ्योरी की इंपॉर्टेंस क्या है और कैसे ये जो पर्सपेक्टिव है Pitirim Sorokin का, that is regarded as, dear friend, one of the most prominent perspective on social change. So let's try to understand what is Pitirim Sorokin's concept of social change. So देखिए in his book, the title of the book is Social and Cultural Dynamics. Pitirim Sorokin, he portrays his perspective on social change where he's trying to explain that how in a society, how in any civilization, dear friend, social or cultural change takes place, in what manner it takes place, that he is trying to explain through this book, Social and Cultural Dynamics,
where Sorokin is trying to portray social change using analogy of pendulum of a watch. जिस तरह से घड़ी का एक पेंडुलम होता है दोस्तों, and that pendulum it swings around two ends, it oscillate between two extreme points. यहां पर आप देख सकते हैं कि how this pendulum it swings around these two extreme points while passing through this medium, dear friend, this intermediate point. So in a similar manner, Pitirim Sorokin is saying that social change is a recurrent phenomena, dear friend. Social change takes place in a recurrent manner between two extreme kind of culture. What he is referring as sensate and ideational culture. जिस तरह से ये जो पेंडुलम है ये ऑस्किलेट कर रहा है, that is swinging around between two extreme end, in a similar manner, dear friend, in different civilizations, in different socio-cultural system, social change is also taking place between two extreme ends or between two extreme form of culture, what he is referring as sensate or ideational culture. अब क्या है sensate, क्या है ideational, ये हम आपके साथ जानने की कोशिश करेंगे. So the way this pendulum is oscillating in a similar manner in different socio-cultural system, social change is also taking place between these two extreme, and when it passes from one extreme to another extreme, it goes through this intermediate point, that is idealistic, that is mixture of sensate as well as ideational. So जिस तरह से ये जो पेंडुलम है ये ऑस्किलेट कर रहा है between two extreme limits, in a similar manner social change also takes place between two extreme kind of culture, that is sensate and ideational. That is the argument of Pitirim Sorokin. इसे और सिंप्लीफाई करके और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, और आप लोग मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं जरूर बताइएगा कि whether you people are able to understand this thing or not. Pitirim Sorokin is saying that when I talk about social change, the unit of analysis that I am taking, that is a particular civilization or a particular socio-cultural system. He is not saying that I am talking about a particular country or I am talking about some national boundary like France, like Britain, like US, like India, like China. मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक socio-cultural system की बात कर रहा हूं that acts as an integrated whole. इस socio-cultural system के अलग अलग पार्ट हो सकते हैं, पॉलिटिक्स हो सकती है, साइंस हो सकता है, आर्ट हो सकता है, आर्किटेक्चर हो सकता है, ब्यूटी हो सकता है. सो दैट सोशियो-कल्चरल सिस्टम इज द यूनिट ऑफ एनालिसिस. इनका कहना है कि हर सोशियो-कल्चरल सिस्टम में कोई एक तरह का कल्चर डोमिनेट करता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट सोशियो-कल्चरल सिस्टम इट अपीयर्स टू अस एज एन इंटीग्रेटेड होल, as an integrated whole. So there is something that unites that socio-cultural system, and that theme, that central tendency, that central current that get reflected in different part of that socio-cultural system. मैं क्या कह रहा हूं समझने की कोशिश करेगा. So his unit of analysis is not a particular national boundary, not a particular country, but he is talking about some socio-cultural system or civilization. For example, जब आप ऐसे बोलते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड, या जब आप ऐसे बोलते हैं कि ईस्टर्न वर्ल्ड, और जब आप बोलते हैं थर्ड वर्ल्ड, या जो भी इस तरह के टर्म यूज करते हैं, एक्चुअली यू आर टॉकिंग अबाउट ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ सोशियो-कल्चरल सिस्टम. यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट ए पर्टिकुलर कंट्री और ए पर्टिकुलर नेशनल बाउंड्री. सो व्हेन यू से दैट वेस्टर्न सोशियो-कल्चरल सिस्टम, so western socio-cultural system is appearing to Sorokin as an integrated whole. जहां पर जो सोसाइटी है, यहां पर जो सोशल लाइफ है, इस सोशल लाइफ में लोगों का जो नजरिया है, लोगों का जो पर्सपेक्टिव है, उनकी जो सोच है, दैट इज रिमार्केबली डिफरेंट फ्रॉम ईस्टर्न सोशियो-कल्चरल सिस्टम. सो वेस्टर्न सोशियो-कल्चरल सिस्टम विद इन इटसेल्फ इट कैरीज नंबर ऑफ कंट्रीज लाइक फ्रांस, लाइक ब्रिटेन, लाइक इटली, लाइक जर्मनी. ठीक है, आप यूएस को भी ले सकते हैं. दैट ही इज रिफरिंग एज वेस्टर्न सोशियो-कल्चरल सिस्टम
इन सोसाइटीज में जो सोशल लाइफ है दैट इज कैरेक्टराइज बाई ए पर्टिकुलर सेंट्रल थीम, ए पर्टिकुलर सेंट्रल टेंडेंसी। इन सोसाइटी में लोगों का जो आउटलुक है, उनका जो नजरिया है, उनकी जो सोच है, उनका जो जीने का तरीका है, ये एक अलग तरीके से है एज कंपेयर टू व्हाट ही माइट बी रिफरिंग एज ईस्टर्न सोशियो कल्चरल सिस्टम। और दिस सेंट्रल टेंडेंसी, दिस सेंट्रल थीम, जिसकी वजह से वेस्टर्न सोशियो कल्चरल सिस्टम में लोगों का जो जीने का तरीका है, उनका जो वे ऑफ लाइफ है, उनका जो नजरिया है, उनका जो पर्सपेक्टिव है, उनका जो व्यू पॉइंट है अबाउट दिस वर्ल्ड, अबाउट दिस सोशल रियलिटी, इसके लिए एक टर्म वो यूज कर रहे हैं। दैट टर्म ही इज यूजिंग एज वेल्टनचुंग। दिस इज ए जर्मन वर्ड डियर फ्रेंड। ये क्या है? एक जर्मन वर्ड है। और वेल्टनचुंग से इनका मतलब क्या है? दैट सेंट्रल थीम, दैट सेंट्रल टेंडेंसी, दैट सेंट्रल करेंट विच यूनाइट्स दिस इंटायर सोशियो कल्चरल सिस्टम। तो जब आप बोलते हैं वेस्टर्न वे ऑफ लाइफ या वेस्टर्न वर्ल्ड का जो सोचने का नजरिया है, दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए पिक्यूलियर वेल्टनचुंग, एंड दैट वेल्टनचुंग और दैट वे ऑफ थिंकिंग और दैट वे ऑफ पर्सपेक्टिव और दैट वे ऑफ नजरिया, दैट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन ऑल अदर एस्पेक्ट ऑफ दिस वेस्टर्न सोशियो कल्चरल सिस्टम। तो जो वेस्टर्न सोशियो कल्चरल सिस्टम है, इसके अलग अलग पार्ट हैं, लाइक देयर आर्ट फॉर्म, their architecture, their science, their knowledge, that is characterized by a particular Weltanschauung, a particular central tendency। उसी तरीके से जो ईस्टर्न वर्ल्ड होगा, वहां पर जो आर्ट फॉर्म या जो आर्किटेक्चर होगा या उनका जो नजरिया होगा, that will be characterized by a different Weltanschauung। So in any socio-cultural system, he is referring as every socio-cultural system is characterized by a particular Weltanschauung। What is Weltanschauung? It is a German word that literally means your perspective, your way of looking। और ये जो perspective या ये जो way of looking है, that penetrates throughout that socio-cultural system, that permeates throughout that socio-cultural system। इसी की वजह से दोस्तों, just because of that, Western socio-cultural system will appear as an integrated whole, and that may appear to you remarkably different from other kind of the socio-cultural system। I hope ये बात आप समझ पा रहे हैं। अब ये बात कर रहे हैं कि देखिए जो वेल्टनचुंग है, that is nothing, it is a central theme or a central current that denotes a perspective, that denotes a way of looking। ये आपके नजरिया को शो करता है कि कैसे आप सोशल लाइफ को व्यू करते हैं। इनका कहना है कि सोसाइटीज जहां पर सेंसेट वेल्टनचुंग होगा, वो सोसाइटीज दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय दिस सेंट्रल टेंडेंसी, दिस कॉमन थीम, दिस सेंट्रल करंट, दैट इज सेंसेट वेल्टनचुंग। इन सोसाइटीज में लोग अपने सेंसेस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। हियर यू विल व्यू रियलिटी, हियर यू विल विजुअलाइज दिस सोशल वर्ल्ड व्हाइल एम्फेसाइजिंग ऑन योर सेंसेस। सेंसस हमने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया है जब आपके साथ पॉजिटिविज्म की बात कर रहे हैं। तो देखिए इस सोसाइटी में लोग ज्यादा इंफेसाइज करेंगे ऑन सेटिस्फैक्शन ऑफ सेंसेस, ऑन डिजायर्स, ऑन फुलफिलमेंट ऑफ देयर डिजायर्स। दे विल मोर इंफेसाइज ऑन हेडोनिस्टिक कल्चर, कंज्यूमरिज्म, मैटेरियलिज्म। यहां पर जो नॉलेज होगा, दैट नॉलेज विल बी इंपीरिकल नॉलेज, जिसे आप सेंसस से एक्वायर कर सकते हैं, जिसे आप देख सकते हैं, जिसे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसे आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो सेंसेट सोशियो कल्चरल सिस्टम, दे विल बी एम्फेसाइजिंग ऑन whatever you can see, whatever you can acquire, whatever you can fulfill with the help of senses। तो societies that are dominated by sensate socio-cultural system, इन societies में dear friend जो beauty के मायने हैं, that will be physical beauty। जो emphasis होगी, that will be on materialism, consumerism, satisfaction of senses, fulfillment of desires। तो such societies will be emphasizing on such kind of the central theme, what he is referring as sensate Weltanschauung। और ये जो sensate Weltanschauung है, इसी के कॉन्ट्रास्ट में दूसरे तरह के Weltanschauung की बात कर रहे हैं,
that is ideational Wilton-Chung. So देखिए societies that will be characterized by ideational Wilton-Chung, they will not be emphasizing on sensual pleasure or sensual desire or acquisition of knowledge with the help of senses, empiricism, ऑब्जर्वेशन, मीजरमेंट, इन पर एम्फेसाइज नहीं करेंगे. जो आइडिएशनल विल्टन-चुंग होगा उसमें जो आपके नॉलेज का बेसिस होगा, आपका जो नजरिया होगा इस सोशल वर्ड को देखने का, वो इस तरीके से होगा कि ये जो वर्ड है ये गॉड ने क्रिएट किया है, ये जो नॉलेज है ये गॉड की डायरेक्शंस हैं. सो हियर फॉर नॉलेज यू विल नॉट एम्फेसाइज ऑन एम्पिरिसिज्म और ऑब्जर्वेशन. अब ये नहीं कहेंगे कि जो आप देख सकते हैं उसी को बिलीव करिए, आप भरोसा करेंगे इन होली स्क्रिप्चर्स पर, क्योंकि इन होली स्क्रिप्चर्स में जो लिखा है आपको लगेगा ये गॉड की डायरेक्शंस हैं. तो सोसाइटीज इन विच आइडिएशनल विल्टन-चुंग विल डोमिनेट, इन सच सोसाइटीज डियर फ्रेंड, बेसिस ऑफ नॉलेज इज योर फेथ. हियर दिस सोशल रियलिटी इज शेयर्ड बाय योर फेथ and your inner orientation, your intuition, your consciousness. यहां पर आपको ये लगेगा कि ये जो कुछ भी आपको दिख रहा है ये सब माया मोह है. ये सब क्या है? माया मोह है. Here you will more emphasize on sacrifice. Here you will more emphasize on renunciation. So आप समझ सकते हैं दोस्तों कि he is talking about two different kind of extreme culture. One is sensate culture, जहां पर आप सेंसेस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं. अदर इज आइडिएशनल कल्चरल थीम, जहां पर आप इंट्यूशन, इनर ओरिएंटेशन, कॉन्शियसनेस, इन्हें ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं. सेंसेट जो विल्टन-चुंग है उसमें नॉलेज का जो बेसिस है ये है ऑब्जर्वेशन, एम्पिरिसिज्म, एनीथिंग दैट यू कैन सी दैट ओनली यू शुड बिलीव. जो आइडिएशनल विल्टन-चुंग है उसमें आपके नॉलेज का बेसिस क्या है? डायरेक्शन गिवन बाय सम सुपरनैचुरल पावर, गॉड. उसे विजुलाइज करने की जरूरत नहीं है, देखने की जरूरत नहीं है, ये इनर कॉन्शियसनेस है. तो जहां पर सेंसेट विल्टन-चुंग में आप इंफेसाइज कर रहे थे हेडोनिज्म में, सेटिस्फैक्शन ऑफ डिजायर में, सेटिस्फैक्शन ऑफ सेंसुअल प्लीजर में, आइडिएशनल विल्टन-चुंग में आप इंफेसाइज कर रहे हैं सैक्रिफाइस पर, रिनंसिएशन पर. सो दीज आर द टू एक्सट्रीम. और सोरकिन का कहना है कि देखिए जो सोशल रियलिटी है इट इज अ रिकरिंग प्रोसेस एंड सोशल चेंज इट कैरीज ए सेंस ऑफ यूनिफॉर्मिटी. तो सोसाइटीज एट द बिगिनिंग व्हेन क्रिश्चियनिटी वाज कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस इट वाज आइडिएशनल. फ्रॉम आइडिएशनल यू मूव टुवर्ड्स सेंसेट, फ्रॉम सेंसेट अगेन यू विल मूव टुवर्ड्स आइडिएशनल. सो सोशल चेंज विल टेक प्लेस in such recurring pattern, in such uniform pattern, like sensate से आप ideational की तरफ जाएंगे, idealistic होते हुए, फिर ideational से आप किसकी तरफ जाएंगे? sensate की तरफ, middle में idealistic होते हुए. तो ये पैटर्न लगातार चलता रहेगा दोस्तों, ये पैटर्न लगातार चलता रहेगा. तो इनका कहना है कि जब भी कोई सोसाइटी किसी एक पर्टिकुलर एक्सट्रीम में चली जाती है, लाइक किसी भी सोसाइटी में, suppose a society reaches one particular maximum, one particular extreme, that is sensate Wilton-Chung. और जब इस सोसाइटी में मैटेरियलिज्म, कंज्यूमरिज्म, हेडोनिज्म, इन पर लोगों की एम्फेसिस बहुत ज्यादा हो जाएगी, उसी समय देयर विल बी सम इंट्रिंसिक फोर्सेस, ही सेइंग, विदिन सोसाइटी और विदिन सोशो कल्चरल सिस्टम, देयर विल बी सम इंट्रिंसिक फोर्सेस that will compel such kind of the socio-cultural system to move towards another kind of socio-cultural system. ठीक है? So socio-cultural जो change है it is intrinsic phenomena. सोसाइटी के अंदर ही कुछ फोर्सेस हैं कि जब आप एक एक्सट्रीम में चले जाएंगे तो आपको दूसरे एक्सट्रीम की तरफ जाने के लिए कंपेल करेंगे, क्योंकि इनका कहना है कि किसी भी सोशो कल्चरल सिस्टम का जो क्रिएटिव पोटेंशियल है ये लिमिटेड है. किसी भी सोशो कल्चरल सिस्टम का क्रिएटिव पोटेंशियल लिमिटेड है. द मोमेंट यू रीच वन पर्टिकुलर एक्सट्रीम, द मोमेंट वन पर्टिकुलर सोशो कल्चरल सिस्टम और Wilton-Chung it get matures, it reaches peak, then tendencies will emerge in that socio-cultural system towards another Wilton-Chung.
एक बार आप एक एक्सट्रीम में पहुंच जाएंगे, सोसाइटी के अंदर से ही ऐसे फोर्सेस जनरेट होंगे जो आपको दूसरे वेल्टन चूंग की तरफ ले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे मैं बात करूं तो ये हमने आपके साथ बात की कि जब एक्सट्रीम मॉडर्निटी आ गई, लोग बहुत सेकुलर हो गए, धीरे धीरे रिलीजन से डिटैच होने लगे, सडनली सोसाइटी में इस तरह की फीलिंग्स आई, लाइक रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, लाइक रिलीजियस रिवाइवलिज्म। सो Sorokin is saying that there is a principle of imminent change. Change is taking place in a recurrent manner, continuous manner and uniform manner. Sensate से आप ideational की तरफ जा रहे हैं. Once you reach ideational, that is another extreme. Again within society, some forces will emerge. They will push you towards another extreme, another Weltanschauung. So whenever I talk about that sensate Weltanschauung, ये हमने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया, और आइडिएशनल Weltanschauung. तो देखिए, आप इस बात को जरूर समझिएगा कि सोसाइटीज दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय सेंसेट Weltanschauung, ऐसा नहीं कि ऐसी सोसाइटीज में लोग फेथ को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं या इनर ओरिएंटेशन को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं. वेदर सेंसेट और आइडिएशनल, दीज आर नॉट प्योर टाइप्स. ये कोई प्योर टाइप्स नहीं है. हमने आपके साथ ऑलरेडी बात की है मैक्स वेबर की दोस्तों. और देखिए, यही सोशियोलॉजी की ब्यूटी है कि कैसे आप एक कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ रिलेट कर सकते हैं. तो आइदर सेंसेट और आइडिएशनल, दीज आर प्योरली आइडियल टाइप, प्योर टाइप. कभी भी किसी भी सोसाइटी में, वेदर इट इज डोमिनेटेड बाय सेंसेट Weltanschauung, there will be an element of ideas. In a similar manner, if a society is dominated by ideational Weltanschauung, there will be some emphasis on sensual pleasure also. But matter ये करता है कि क्या dominate कर रहा है. In this manner, Sorokin is saying कि societies, they are continuously oscillating from one extreme to another extreme. And when they move from one extreme towards another extreme, dear friend, they move through this intermediate path that is idealistic, having component of both sensate as well as ideational. तो देखिए, काफी नया पर्सपेक्टिव Sorokin ने दिया, बट लोगों ने क्रिटिसाइज किया. लोगों ने बोला कि देखिए, आपकी जो थ्योरी है ये यूरोप सेंट्रिक है दोस्तों, इट कैरीज एथनोसेंट्रिक बायस. आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे यूरोपियन सोसाइटी दैट रीच एट वन पर्टिकुलर एक्सट्रीम, how it is moving towards another extreme, and generalizing that there are two extreme kind of the socio-cultural system and societies, they move from one socio-cultural to another socio-cultural system. It was regarded as overgeneralization. These are the two main criticism of Pittrim Sorokin's theory on social change. I hope this theory you people would have understood, dear friend. आपको ये बात समझ में आया होगा कि क्या है सेंसेट, क्या है आइडिएशनल, व्हाट इज आइडियलिस्टिक, हाउ अकॉर्डिंग टू Pittrim Sorokin social change is taking place between these two extreme in an oscillating manner. So thank you to all dear friend for joining me and for staying with me, giving your time. Thank you dear friends. Thank you.